See, identify. First question is identify the highlighted nouns in these sentences are countable or uncountable. आप इस sentences में आपको identify करना है कि जो highlighted words हैं वो countable हैं या फिर uncountable हैं. First is selected candidates will appear for the second round of interviews next week. Candidates can be counted, so this is countable. Second one is the bread that my mother prepares is delicious. But bread आप count कर सकते हैं. This is also countable. I do not have enough money to buy a car. Enough money आप count कर सकते हैं, लेकिन इसमें specify amount नहीं दिया हुआ कि कितना, so you can't count. This is uncountable. अगर now like this I have done 3 examples for you. Now you just do these another sentences with on your own. Now next question is, now second question is related to the abstract noun. Complete these sentences with abstract noun forms given in the brackets. आपको brackets में से abstract noun given है, आपको इसको use करके आपको क्या करना है, इन sentences में fill करना है. First is we enjoyed the hospital given है bracket में, so we will put hospitalization. Hospitalization and hospitalization of the generous villagers. Shreya had no information. Inform मतलब बन जाएगा information. By adding some suffixes, you can do these exercises. I have done 2 examples for you. You have completed this exercise on your own, as we have done. You can see here. And next is anger destroys our ability to think. This is ability to think. And next question is read the given paragraph and underline the abstract nouns. इसमें आपको underline करना है abstract nouns. इस paragraph को read करके abstract nouns आपको पता है emotions जो feelings होती हैं उन्हें हम abstract nouns कहते हैं. So let's start. Mr. Harding would always walk to the park for some relaxation in the evening. This place and this time of the day brought him immense joy and peace. Here he would sit peacefully and view the busyness of the day gradually dissolve into the harmony of the dusk, the energy and laughter of the children and the friendly banter of the teenagers evoked the memory of his younger days. His extended conversations with young folks in the park gave him the freedom to share his beliefs, knowledge and wisdom. And as darkness enveloped the earth, he quietly walked back home with warmth and affection in his heart. So underlined words are abstract nouns. Underline these words and write down the paragraph. Now these questions are related to the collective nouns. Collective nouns is the group of words we are using. So first is a convection of eagles. हम के words क्या क्या use करते हैं, किस के साथ, तो they here we have the words. A convection of eagles, a bunch of keys, a babble of barbers, a string of pearls, a herd of sages, an Arab of lawyers, a murder of crows, a coalition of cheetahs, a swarm of bears, a chest of drawers. So, in next question, some collective nouns have been used incorrectly in these sentences. इन sentences में कुछ words, एक group of words जो name आना चाहिए, specific name वो given नहीं है, अलग से name given है. So इन words को ठीक करके लिखना है, आपको correct करके लिखना है इन collective nouns को. In first sentence you can see here a colony of honey bees. इसमें honey bees के साथ नहीं होती है a hive of honey bees. जो मधुमक्खी का छत्ता उसे हम hive कहते हैं. So a hive of honey bees has one queen bee and thousands of worker bees. An army of ships. Army of ships नहीं होती, soldiers होते हैं. An army of soldiers is sailing towards the North Pole.
from the bird sanctuary yesterday. A firm of singers नहीं होता, a choir of singers. We are using firm in place of firm. We are using choir of singers is participating in the studio. A parliament of owls lives near the giant oak tree. Parliament. We are using parliament. A clump नहीं होता, an orchard. An orchard of apple trees is a great place to climb and eat. Now we are having second chapter adjectives, and on the basis of this question we are having identify the kinds of adjective in these sentences. आपको इनमें adjectives को find out करना है कि कौन सा kind इसमें है. First sentence is the school purchased some expensive equipment for the new gymnasium. It means आपको इसमें ये find out करना है some क्या है adjective, और ये कौन सा kind है quantity. So write it down like this only in your notebooks. Second one is the children thank their parents for the lovely gifts. There is adjective kind is possessive. I need to return these books to the library by tomorrow. These is adjective kind is demonstrative. The silent night filled his childish heart with vague fears. His is possessive. His is possessive. Like this you have to find and complete your book exercise on your own. Now this is the adjectives question. Fill in the blanks with adjectives formed by adding suitable suffixes to the words given in the brackets. इसमें आपको adjectives given है bracket में. इन adjectives को use करके आपको क्या करना है, इसमें suffixes add करने हैं. जैसे हम हिंदी में प्रत्यय लगाते हैं, ऐसे ही आपको इसमें प्रत्यय लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है. This poet का क्या बन जाएगा poetry. This poetry composition brings to light her creative talent. Creative talent. The lyrics Blacks of William Wordsworth fill my heart with delight. My mother took me to a herbal doctor for my stomach problem. The colorful flowers cheered the beautiful lady who then sang miserably. If we do not take any strict conservation measures now, all our natural resources will soon be on the verge of extinction. Now add some suffixes to these adjectives and complete this exercise on your own. Now next question is related to the degrees of adjectives. First question is study each entry and write the sentences accordingly following giving examples. First example is done by the first question is no positive है, इसमें हमें positive given है. Sentence मतलब होता है जो जिसमें proper sentence simple sentence given है हमें. No other device is popular as the mobile phone. अब इसको हमें comparative में change करना है. Comparative में आप कैसे change करेंगे? The mobile phone is more popular. इसमें हमने जो more word use किया है ये क्या है? Second यानी कि comparative degree का है ये. More popular than any other device. In superlative we are using most. The mobile phone is the most popular device. Like this we are going to do this question. First, second point is positive में हमें given है. No other position is as important as knowledge. Next is comparative. इसको हम comparative में कैसे change करेंगे? The knowledge
The knowledge is more important than any other profession, any position. Like this, we are using second superlative comparative degree with important, more, and then we are using here in superlative the knowledge is most important. The knowledge is the most important than any other position. In comparing superlatives, we are not using then. When only comparing, we are using then. Like this, you completed your these questions accordingly. अब थर्ड में क्या है, हमें सुपरलेटिव में गिवन है तो हमें सिंपल सेंटेंस और कंपैरेटिव डिग्री को कंप्लीट करना है. Just do these questions right according to yourself. In the B question, identify the others in these sentences and rewrite them correctly. इनको क्या करना है, आपको इसमें कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना था और वहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लिया है, या कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना था वहाँ पे पॉजिटिव है. तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस वी आर डूइंग द सेम थिंग. करेक्शन करेंगे हम इसके अंदर और इस करेक्शन को आप रीराइट करेंगे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग. जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू नॉट अज्यूम दैट यू आर मोर बेटर देन द अदर्स. इसके अंदर आएगा आपका बेटर. मोर के साथ कभी भी हम मोर वर्ड यूज नहीं करते, वर्ड्स या बेस्ट यूज करेंगे क्योंकि बेटर ये है. सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री है हमारे पास और वर्ड्स क्या होगी इसकी. So this word is used here. Rewrite this. Do not assume that you are worse than the others. In place of more, no, we are not using this more word, only better we are using. So do not assume that you are better than the others. So rewrite this sentence. No, only cutting is not required. You will write it down the sentence again. In next sentence, the heat this summer is worse than the last. अब इसमें than यूज किया है जो हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे दैट इज worse. W-O-R-S-E, worse. Like this in third sentence, doing your homework is important than playing video games. इसमें then यूज किया है जो कंपैरेटिव डिग्री का है और कंपैरेटिव डिग्री हम क्या यूज करते हैं important के साथ more. So I have done 3 sentences for you. Now next 2 sentences you have to do it on your own. Now next question is related to the adjectives. Filling the blanks with the correct adjectives given in the brackets. हमें 2 adjectives given हैं bracket में, लेकिन according to the sentence इसमें कौन सा adjective correct आना चाहिए उसके according fill करेंगे अब हम. I spent dash money I had on this gorgeous dress. A little, the little. It means I spent a little. Second is my elder. Elder में देखिए 2 sentences words है, elder and older. Older के साथ यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं elder. I have marked all the adjectives according to the sentences. You can see here. Just complete the sentences on your own. Now this question is related to the articles. Complete the paragraph by inserting the articles a and or the in the appropriate blanks. इसमें आपको blanks खाली given है और इसके अंदर blanks के अंदर आपको put करना है articles a and or the. इन तीनों articles को use करके. I have told you earlier, a का use करते हैं, the और and का कहाँ use करते हैं. So Priya was very excited about an upcoming Europe tour. It was a month away, but she could not stop thinking about it even for an hour. She was reading a lot about the places she would visit and was trying to understand the value difference between a Europe and a
You can see the fill in the blanks and remaining fill in the blanks, do it on your own. And we completed with this exercise. Thank you everyone. Students, welcome to our online classes. This is for class 7, and in previous class we complete our first chapter of geography, and today we start our class with the second chapter of geography named Interior of the Earth. Now the first question of this exercise is fill in the blanks, and first part is the interior of the earth is composed of different concretic layers, namely dash, mantle and dash. तो 3 लेयर्स होती है अर्थ की, फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड कोर. Second is the dash is the thinnest and the uppermost layer of the earth. कि अर्थ की सबसे पतली और ऊपर की लेयर कौन सी है? तो कौन सी है सबसे ऊपर की लेयर? क्रस्ट या लिथोस्फीयर. Third is the average thickness of the crust ranges from 8 to 50 किलोमीटर. कितनी रेंज है अपनी लिथोस्फीयर की या क्रस्ट की? 8 से 50 तक. Fourth is the dash is made up mainly of two minerals, silica and aluminium. तो सिलिका और एल्यूमिनियम के जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं Si और Al, so Si plus Al, Cyan. Cyan is made up mainly of 2 minerals, silica and aluminium. Fifth is dash or the lower crust is mainly composed of silica and magnesium. इसमें भी ऐसे ही हम 2 वर्ड्स लेंगे Si plus Ma. तो क्या बन गया? Si Ma, सीमा. Now we do our true false. The first is the mantle or the mesosphere is the layer which lies just below the crust. So this is true. कि मेंटल जो है वो क्रस्ट के जस्ट नीचे है. देखो बेटा ये आपकी अर्थ है, ये जो सबसे ऊपर वाली है ये है क्रस्ट, उसके बाद आती है मेंटल और उसके बाद आती है कोर. तो ये 3 लेयर्स है अपनी अर्थ की. ओके. सेकेंड इज द मेंटल हैज ए थिकनेस ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर. तो ये भी क्या है? ट्रू है, क्योंकि जो अपनी क्रस्ट है वो 8 to 50 है, ये फिर 2900 तक है और उसके बाद 6312 किलोमीटर तक. इसकी थोड़ी बहुत ये 6314 मिल सकती है, कहीं आपको 18 मिल सकती है, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. तो ये इनकी लेंथ है. थर्ड इज मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट इज द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन द मेंटल which is known as olivine because it is olive green in color. कि जो मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट है वो मोस्ट कॉमन मिनरल है जो कहाँ पाया जाता है? मेंटल के अंदर. और इसकी जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन, ये जो है ओलिवाइन वो कलर में कैसा है? ग्रीन है. तो ये भी क्या है? ट्रू है. फोर्थ इज द कोर और द बायोस्फीयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये क्या है? ट्रू, क्योंकि जो हमने अपनी अर्थ का जो ये डायग्राम बनाया है ना, जो अपनी गोल अर्थ होती है, तो उसमें से हमने ये एक पार्ट कट किया है यहाँ पे. ठीक है, ये नहीं है कि अपनी अर्थ ऐसी ही है, हमने इसका ये एक पार्ट कट किया है स्टडी करने के लिए. तो फिफ्थ है सम रॉक्स विच पॉजेज ए हैवी कंसंट्रेशन ऑफ ए मेटालिक मिनरल. तो ये भी क्या है? ट्रू है. उसके बाद सिक्स्थ है igneous rocks are those rocks which have been formed as a result of solidification of magma. तो ये भी क्या है कि जो igneous rocks होते हैं वो मैग्मा के जमने से बनती है. तो ये भी क्या है? ट्रू है, क्योंकि जो आपका रॉक साइकिल का डायग्राम है वो आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप देख लेना कि igneous rock से कौन सी बनती है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक बनती है, और मेटामॉर्फिक से वापस से क्या बन जाता है?
बनती हैं। Our seventh is sedimentary rocks are those rocks which have been formed from the hardening of such sediments. कि जो sedimentary rocks होती हैं वो कुछ जो sediments होते हैं, कुछ अवसाद होते हैं, तो उनके solid होने से बनती है, उनके hard होने से बनती है, तो ये भी क्या है, true है। Now we do our give one word. First is it is known as olivine because it is olive green in color. कि इसको olivine कहा जाता है क्योंकि ये कलर में कैसी है, olive green है। तो इसका क्या है आंसर, मेंटल। ये हमें वन वर्ड में ही करनी है और हम इसका आंसर भी वन वर्ड में ही देंगे, बड़ा नहीं करेंगे। सेकंड है rocks that have sediments have been deposited in the layer or strata. आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स की जो सेडिमेंट से बनती है वो क्या होती है, सेडिमेंट रॉक्स होती है। थर्ड इज मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल मैग्नीशियम आयरन MAGNESIUM मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट कि जो मोल्टेन मटेरियल्स होता है मेंटल के अंदर उनको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। फोर्थ इज कोर ऑफ द अर्थ आल्सो कॉल्ड कि जो अर्थ की कोर होती है उसको क्या कहते हैं, आपने फर्स्ट वाली लेयर में देखा था SI प्लस AL SI प्लस MA और जो थर्ड है वो है NI प्लस FE, तो ये क्या बनी, नीफे। ओके, आवर फिफ्थ इज rocks form when magma cools down। तो क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि जब मैग्मा ठंडा होता है तो कौन सी रॉक्स बनती हैं, इग्नियस रॉक्स बनती है, IGNEOUS इग्नियस रॉक्स। Our next chapter is earth movement. Horizontal movement results in compression which dash a part of the crust। कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के रिजल्ट से, देखो अपनी जो लेयर्स होती हैं और जो क्रस्ट की लेयर्स होती हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सियाल और सीमा, तो ये जो लेयर्स होती है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल जब कंप्रेस करती है, दबाव डालती है, तो क्या बनता है, तो क्या होता है, फोल्ड्स बनते हैं, क्योंकि दोनों का दबाव होने से ऐसे फोल्ड्स बनते हैं। आप अपनी नोटबुक के को ओपन करके और उसके ऊपर दोनों साइड से दबाव दो तो जो बुक का या नोटबुक का बीच का हिस्सा है वो तो ऊपर उठ जाएगा और साइड वाले किनारे फिर वो ऐसे शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, फोल्ड्स। सेकेंड इज डैश मूवमेंट्स पुश पार्ट ऑफ द क्रस्ट अप और डाउन कि अप और डाउन, अब ये तो हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल जो प्रेशर लगता है उसको क्या कहते हैं, मैंने आंसर तो बता ही दिया, वर्टिकल मूवमेंट्स पुश पार्ट द क्रस्ट अप एंड डाउन की क्रस्ट को अप एंड डाउन ये करते हैं। थर्ड इज डैश इज ए टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फ्रॉम टू अपोजिट साइड्स। तो क्या होता है ये, फोल्डिंग, अभी हमने फर्स्ट में भी किया था। फोर्थ है ए सिंपल फोल्ड माउंटेन इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश सिंक्लाइंस SYNCLINES सिंक्लाइंस एंड एंटीक्लाइंस। सिंक्लाइंस एंड एंटीक्लाइंस, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको सिंक्लाइन बोलते हैं। सिक्स्थ इज डैश माउंटेन कैन। फिफ्थ इज सिंक्लाइंस आर द डैश और वैली वाइड एंटीक्लाइन आर डैश और कैट्स। तो क्या है जो इसमें डाउनफॉल्स है, सिंक्लाइन का जो वैली बनती है, जो ऐसे वैली बन रही है तो इसको क्या कहते हैं, डाउनफॉल्स। डाउन फॉल्स और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको कहते हैं अपफॉल्स। जो सिंक्लाइन से बनता है, मैंने अभी बताया था कि ये वाला हिस्सा क्या है, सिंक्लाइन है, तो इससे क्या होता है, डाउनफॉल्स होते हैं और ये जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, अपफोल्ड कहते हैं या एंटीक्लाइन कहते हैं। सिक्स्थ इज डैश माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू यंग फोल्ड माउंटेन
क्या है इसका आंसर? फोल्ड माउंटेन्स। कि जो फोल्ड माउंटेन्स है उन्हीं को तो हम यंग और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में कैटेगराइज करेंगे। 7th है द डैश ऑफ राजस्थान एंड द यूराल्स ऑफ यूरेशिया आर 2 ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। द अरावलीज, क्या है? अरावलीज, LLIES। द अरावलीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो और यूरेशिया की जो यूराल पर्वतमाला है वो दोनों ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। Now we do our true false. First is faulting refers to the breaking or cracking of the old hard and brittle rocks which leads to the formation of cracks or folds in the earth crust. ये folding क्या होती है? किसी चीज का टूटना फूटना। आपके पास जो कांच होता है, अब अगर आप कांच को गिरा देते हो तो उसके कितने सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कहीं से तो वो क्रैक हो जाता है। अगर वो धीरे से गिरा है तो वो क्रैक होगा, और अगर आपने उसको जोर से डाला है तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या है? ट्रू है ये अर्थ की क्रस्ट भी ऐसी होती है कि इसके अंदर क्रैक्स आते रहते हैं। सेकेंड है ए फॉल्टिंग यूजुअली रिजल्ट इन ए रिफ्ट वैली और ए ब्लॉक माउंटेन। की जो फॉल्टिंग है, फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी, पीछे हमने पढ़ा था फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है मोड़ना और फोल्टिंग का मतलब टूट जाना, ठीक है? तो फोल्टिंग से क्या बनती है? रिफ्ट वैली बनती है और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो ये भी ट्रू है। थर्ड इज volcanoes are weak point on the surface of the earth that open up due to pressure from inside। कि जो वोल्केनो होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, वो अपनी अर्थ के ऊपर कैसे आते हैं? कि जहां से उन्हें जगह मिलती है अर्थ के ऊपर आने के लिए, जहां से उन्हें वीक पॉइंट मिलता है अर्थ का, तो वो वहां से बाहर निकल आती है। तो ये भी ट्रू है। फोर्थ इज समटाइम्स इंस्टेड ऑफ वायलेंट eruption magma oils outthrow fizzles of cracks on the crust and form volcanic plateau। कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट eruption होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से, बहुत ही ज्यादा भयानक eruption होता है मैग्मा का, और जो क्या बनता है? जो क्रैक्स ऑफ क्रस्ट से बाहर आता है उससे प्लेट्यूज बन जाते हैं, ठीक है? प्लेट्यू बन जाते हैं ऐसे। तो ये भी क्या है? ट्रू है। फिफ्थ इज earthquake or sudden violent shaking of ground। कि वोल्केनो आता है तो क्या होता है? वो अर्थ को क्रैक करके बाहर आता है, तो ऑब्वियस बात है क्रस्ट, जो अपनी क्रस्ट है या जो अपना ग्राउंड है वो हिलेगा तो सही। तो ये भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट इज टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट एंड वोल्केनिक इरप्शन आर द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, टेक्टोनिक प्लेट क्या है? जो अपनी अर्थ की लेयर्स है, ठीक है? अर्थ के नीचे जो अपनी प्लेट्स हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, और जो वोल्केनिक इरप्शन है और जो ज्वालामुखी का बाहर निकलना है, इन दोनों की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। Our seventh is seismology is the study of earthquakes and the instrument used to measure an earthquake is called seismology। कि जो सिस्मोलॉजी है वो स्टडी है अर्थक्वेक की, भूकंप की जो स्टडी है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जिस यंत्र से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम भूकंप को मापते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये ट्रू है। 8 is earthquake are measured using the Richter scale which ranges from 0 to 9। कि हम earthquake को किस पे मापते हैं? रिक्टर स्केल पे मापते हैं, और इसको कितने से कितने तक मापा जाता है? 0 to 9। तो ये भी क्या है? ट्रू है। Now we do our C part, give 2 examples। अब हमें ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स हैं आपके, इनके हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सबसे पहला है यंग फोल्ड माउंटेन। तो यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, पहला है हिमालय, HIMALAYAS, हिमालयास, और सेकंड है रॉकीज। सेकंड क्या है? रॉकीज। उसके बाद सेकंड है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, कि पुराने जो फोल्ड माउंटेन है उनमें एक है यूराल और सेकंड है अरावली, ARAVALLIES, अरावलीज। अब इसमें पूछा है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स।
सकते हैं फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। उसके बाद फोर्थ है टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो टाइप ऑफ वोल्केनो क्या है? एक तो होता है एक्टिव वोल्केनो और दूसरा होता है डोरमेंट। Now we do the exercise of fourth chapter named the atmosphere. First is fill in the blanks and first part is the dash is the only planet in the solar system known to sustain life. कि सोलर सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ सस्टेन करती है, तो कौन सा है? अपना अर्थ है। सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर and land makes it possible for life to exist on earth। कि किस किस की प्रेजेंस जरूरी है आपके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए? वाटर की, लैंड की और एयर की। थर्ड इज द डैश इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड इट हैड इन द प्लेस बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि अर्थ के जो बाहर है वो क्या है? मिक्सचर है जो गैसों का, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ATMOSPHERE। हम इसको ब्लैंकेट ऑफ एयर भी बोलते हैं ना, जो अपने आप के चारों तरफ होता है। फोर्थ इज द एटमॉस्फेयर इज ए डैश ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो यही इसका जो अभी हमने ऊपर किया था उसी का ये दोबारा से आ गया, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। कि एटमॉस्फेयर अपने वायुमंडल के अंदर, अपने वातावरण के अंदर बहुत सारे मिक्सचर है, बहुत सारे तत्वों का। फिफ्थ है द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डैश में लेयर, डिफरेंट लेयर्स। तो 5 लेयर्स के अंदर अपना एटमॉस्फेयर बटा हुआ है। नाउ दीज आर द ट्रू फॉल्स ऑफ आवर फोर्थ चैप्टर। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर एंड इट प्रेजेंट जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे लोएस्ट लेयर है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी 5 लेयर्स हैं कौन सी। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद है आपकी मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर। उसके बाद है आपकी थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, आइनोस्फेयर। और लास्ट है आपकी एक्सोस्फेयर। तो आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि आपकी जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। तो ये क्या है? फ्लू है। Second is the boundary where the troposphere ends and stratosphere starts is known as tropopause। तो अभी मैंने आपको जो लेयर्स बताई हैं उन लेयर्स के जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे एक एक पोज और है, ये पोजेस और हैं। तो इनको क्या कहते हैं? जो ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे खत्म होती है और स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होती है इसको कहते हैं ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज। इसको कहते हैं स्ट्रेटोपोज, इसको कहते हैं मीसोपोज। और जहां से ये थर्मोस्फेयर खत्म हो रही है, एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो रही है, इसको कहते हैं थर्मोपोज, THERMOPAUSE। जब तक आपको ये डायग्राम नहीं पता होगा आपका ये चैप्टर बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है। तो आपकी बुक में ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो ये भी क्या है? फ्लू है। थर्ड इज द स्ट्रेटोपोज सेपरेट द अपर स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द मीसोस्फेयर। तो ये भी क्या है? फ्लू है। क्या है ये? फ्लू। फोर्थ है द मिडिल लेयर और मीसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम द मीसोपोज। कि जो मिडिल लेयर है मीसोस्फेयर वो लाई करती है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर और वो खत्म कहाँ पे होती है? मेसोपोज पे खत्म होती है। तो ये भी क्या है? ट्रू है।
थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, दोनों ही नाम है इस लेयर के। थर्ड है इट सेपरेट द अपर स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द मेसोस्फेयर। तो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर को मेसोस्फेयर से अलग करता है, तो स्ट्रेटोपॉज। फोर्थ इज इट इज द लोएस्ट लेयर एंड इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि ये सबसे लोवेस्ट लेयर है और ये अर्थ सरफेस के ऊपर बिलोंग करती है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। फिफ्थ इज द मिडिल लेयर और मेसोस्फेयर लाइज अबव दिस, कि जो मेसोस्फेयर है वो इसके ऊपर लाई करती है, तो किसके ऊपर लाई करती है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के ऊपर लाई करती है। Now we do our fifth chapter, atmospheric pressure and winds. First is elements of weather and climate. The name of chapter fifth is element of climate and weather. Next sixth chapter is atmospheric pressure and wind. So first film is conditions like dash, air pressure and then rainfall, cloudiness dash and direction of the wind come under weather. कि weather के अंदर कौन कौन सी conditions आती हैं, तो कौन कौन सी condition आती है, सबसे पहले temperature, उसके बाद air pressure, humidity, rainfall, cloudiness और उसके बाद speed and direction of wind. Okay. Second is dash deals with the average weather conditions of a place over a long period of time. कि वेदर का जो वेदर कंडीशंस है या वेदर का जो चेंजमेंट है वो एक लंबे पीरियड तक जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। जब जल्दी जल्दी चेंज हो, एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। जबकि 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। Third is an average weather conditions of an area is taken over a period of dash years or more. तो कितना टाइम लेता है क्लाइमेट चेंज को, 35 years। कितना साल लेता है, 35 years। फोर्थ है सोलर रेडिएशन और डैश इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट दैट द अर्थ रिसीव्स, कि सोलर रेडिएशन की जो अर्थ के जो सोलर रेडिएशन और क्या है, जो एक बिगेस्ट सोर्स है हीट का, तो क्या है वो, इंसोलेशन। सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, ये दोनों ही, इंसोलेशन का मतलब भी अर्थ की जो रेडिएशन होती है उसका, सन की जो रेडिएशन होती है उनका अर्थ के ऊपर आना ही इंसोलेशन कहलाता है। Fifth is the dash receives maximum heat which decreases as one goes towards the two poles, कि maximum heat जहाँ पे डिक्रीज होती है पोल्स के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से जब हम पोल्स की साइड जाते हैं, ठीक है, मान लो ये अपनी अर्थ है और ये इक्वेटर है, अब ये कह रहे हैं कि किधर जाने से जो हीट है वो डिक्रीज होगी, तो जब हम पोल्स की साइड जाएंगे, तो इक्वेटर से पोल्स की साइड जाएंगे तो हीट डिक्रीज होगी, क्योंकि ये तो फ्रिज जोन है और ये टॉरेंट जोन है, सबसे ज्यादा हीट यहीं पे प्राप्त होती है। The sixth है the surface of the earth is divided into 3 heat zones। कितनी हीट जोन्स में डिवाइड है अपनी अर्थ, 3 हीट जोन्स में। We do our true false of this chapter. First is the 3 heat zones are the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone. This is true। 3 heat zones ही हैं, अभी हमने मेंशन किया था। Second, the torrid zone is the hottest zone among the 3 zones. Yes, torrid zone सबसे heatiest zone है क्योंकि ये इक्वेटर के दोनों साइड होती है। Third is the temperate zone is neither very hot or very cold. Yes, this is true because it is moderate zone. Fourth is in the southern hemisphere the temperate zone extends from the tropic of Capricorn to the Antarctic Circle। कि जो दक्षिणी गोलार्ध है
जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है। फिफ्थ है द फ्रिज जोन इज द कोल्डेस्ट जोन बिकॉज द सन रेज दैट रीच द पोलर रीजन आर स्लैंटेड। कि फ्रिज जोन इतनी कोल्डेस्ट क्यों है, इतनी ठंडी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा तिरछी किरणें जाती हैं। सन यहाँ पे हमें रोशनी यहाँ पे पहुँचानी है, तो ऐसे टेढ़ी जाएगी, तो टेढ़ी तो थोड़ी ही जाएगी। तो ये भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद सिक्स्थ है टेम्परेचर रिड्यूसेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। कि टेम्परेचर कम होने लग जाता है जब हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा टॉरिड जोन है, हीट जोन है ये, उसके बाद टेम्परेट है और उसके बाद फ्रिज है। तो ये भी क्या है आपका, ट्रू। नाउ वी डू आवर सिक्स्थ चैप्टर, नेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश pressure is defined as the pressure exerted on the surface of the earth by the weight of air। कि जो प्रेशर है वो मतलब कि जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर जो एयर होती है उसका ही तो प्रेशर होता है। जितनी ज़्यादा गर्म हवा होगी वो हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, जहाँ पे गर्म हवा होगी या ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में जितना हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे वहाँ पे क्या होगा कि जो एयर की जो डेंसिटी है या जो एयर प्रेशर है वो कम होगा, जबकि अर्थ के ऊपर एयर प्रेशर कम होगा। देखो मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर एयर है, यहाँ पे ये एयर आ रही है, ये एयर अर्थ सरफेस को टच करने के बाद क्या होगी, गर्म हो जाएगी और ये ऊपर उठ जाएगी। ठीक, जब ये हवा ऊपर उठ जाएगी तो इसकी जगह लेने के लिए दूसरी हवा आएगी, तो क्या होगा, हल्की हवा तो ऊपर चली जाती है और भारी हवा नीचे रह जाती है। तो यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यही चीज आपको समझनी है कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर